A very good morning, ladies and gentlemen, and thank you for joining us today in this way. Well, we're all here for the inauguration and launch of Dr. Shukla's Gastroenterology and Allergy Center. It is indeed a privilege to have amongst us our chief guests, B.K. Shivani, who's a teacher in Brahma Kumari spiritual movement in India. She travels in India and abroad, appearing at charitable events and has her own YouTube channel. We also have with us over 300 films and the recipient of prestigious awards and nominations for his craft. This gentleman is an actor par excellence, the legendary, none other than Mr. Johnny Lever. Well, ladies and gentlemen, we'd like to take you through a presentation. Can we have that, please? Ladies and gentlemen, Dr. Akash Shukla, MBBS, MD, DM. Well, he's a professor and head gastroenterology, Seth GSMC and KEM Hospital, Mumbai, senior consultant, hepatologist and liver transplant physician, Global Hospitals. Well, facilities for gastroenterology and liver patients. We have routine endoscopy and colonoscopy. We have fibroscan to assess damage to liver, manometry for patients with constipation and difficulty in eating food, biofeedback therapy for constipation, hydrogen breath test analysis for patients with gas, acidity, and bloating, urea breath test for H. pylori for patients with acidity or ulcers, food allergy testing, and hydrogen breath testing for those who can't digest milk or other specific food items. Dr. Sunita Shukla, MBBS, MS, ENT, DNB, founder and director, Mumbai Allergy Center, honorary consultant allergist, KEM Hospital and Global Hospital. Ladies and gentlemen, facilities for allergy patients, one-stop solution for all types of allergies, diagnosis of all allergies, ENT, eyes, allergic asthma, chronic cough, skin allergy, food allergy testing, drug allergy testing, COVID vaccine allergy test, and customized treatment as per allergy tests, example, immunotherapy. Ladies and gentlemen, I would now like to request B.K. Shivani to please give us our blessings and inaugurate the center. Over to you, ma'am. Om Shanti. Dr. Shukla's center had to be inaugurated by our divine respected Dadi Gulzar ji. And so हम इस समय यही विजुअलाइज करेंगे कि दादी जी हमारे साथ हैं और दादी जी ही इस सेंटर का अपनी ब्लेसिंग्स के साथ उद्घाटन कर रही हैं। सो हम सब परमात्मा को याद करके दादी जी को यहाँ अपने साथ महसूस करके, नीलू दीदी, नेहा दीदी हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर इकट्ठे इस हीलिंग सेंटर का दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उद्घाटन करते हैं। हम सब मन में ये विजुअलाइज करें कि दादी जी ही इस हीलिंग सेंटर का रिबन खोलकर, दादी जी सिखाती थी कि रिबन काटना नहीं है, कभी भी रिबन खोलकर उद्घाटन करना है। तो हम सब दादी को याद करके दादी के हाथ और साथ से रिबन खोलते हैं। ओम शांति। May I request Dr. Sunita Shukla, Dr. Akash Shukla, and Mr. Johnny Lever to join us for the lamp lighting. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व।
Dr. Sunita Chapola Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center at Kohinoor Square, Dadar. Our center is a one-stop solution for all type of allergies. So don't stay in a cocoon of allergies. Come to our center, get diagnosed and treated, and give wings to your life. Thank you and best wishes. Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla. I am practicing gastroenterologist and hepatologist at Dadar, Mumbai. We are seeing a large number of cases pertaining to lifestyle disorders like acidity, constipation, fatty liver disease, cirrhosis of liver, cancers of the stomach, large intestine, and cancers of the liver. Fortunately for us, with better medicines, better diagnostic facilities, all these ailments can be treated, diagnosed, and even cured if done in the right way. We should all be very vigilant about these disorders and not neglect any symptoms pertaining to the GI system. Thank you and all the best. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. With that, ladies and gentlemen, I'd like to request Dr. Akash to welcome Mr. Johnny Lever and then request Mr. Johnny Lever to please say a few words. Yes. जी जी जरूर। सबसे पहले तो शुक्ला जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एलर्जी सेंटर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप सेंटर चला रहे हैं और चलाएंगे बहुत ही अच्छा चलेगा। मैं चाहता हूँ परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि लोग यहाँ आए, शिफा पाएं, उनकी बीमारियां से निकल जाए और आपके हाथ में वो शिफा है, आपके हाथ में वो बात है। शुक्ला जी, मैं बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको जानता हूँ, ये बात मैं कहूँगा क्योंकि मैं दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ शुक्ला जी के बारे में। हमारे जानने वाले हैं, बचपन के दोस्त, हमारे नेबर्स, और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लीवर की शिकायत थी। उनको हम ले गए, हिंदुजा में ले गए थे, तो वहाँ के लीवर में पानी वानी भर गया था, तो पानी निकालेंगे, फलाना करेंगे। तो वहाँ से पता चला कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, बस ये ऐसी ही जब तक जिंदा रहेगी जब तक जिंदा रहेगी, इसका कुछ हो नहीं सकता है। ये वो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की डॉक्टर ने। और हम क्या करें, उनको ग्लोबल ले जाओ, ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ पर मेरी शुक्ला जी से पहचान हुई। तो वहाँ हम लेकर गए उनको। शुक्ला जी ने देखा, सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखे उन्होंने, और देख करके बताया कि ये प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये होगा, फलाना है, लीवर का ये है। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया और मैंने कोशिश की समझने की। तो बातों से पता चलता था बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा जॉनी जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा आप कोशिश कीजिए कि ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े, और मुझे उम्मीद है आप करेंगे। मैंने ये भी कहा, वो हंसे, और वाकई ऐसा हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, दवाइयां उनकी कम हो गई। इन्होंने इतना ऐसा इलाज किया, अब उसको ट्रांसप्लांट की मेरे ख्याल जरूरत नहीं। Am I right, सर? तो ये एक चमत्कार है, अजूबा है परमेश्वर की। इनको बहुत बड़ी गिफ्ट है। डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन किसी किसी को परमेश्वर, किसी किसी के सर पे हाथ होता है परमेश्वर का। तो ये इन्होंने मेरे साथ किया है, और मैं मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जिन जिन को हाथ लगा है उनके साथ ऐसे चमत्कार होता रहे। और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत इनकी जर्नी, मैं इनसे बातें सुनी तो इन्होंने जहाँ से इन्होंने शुरू किया, इनकी जो भी अपना डॉक्टरी इन्होंने शुरू की, अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी इनकी पास्ट की जो बातें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बड़ी मेहनत से
मेहनत से इंसान पहुंचता है, और मेहनत करने के बाद जो मेहनत करके आता है उसी के दिल में ऊपर वाला ऐसी बातें डालता है कि मैं कुछ अच्छे कार्य भी करूं। तो ये चुपचाप बहुत से अच्छे काम भी करते हैं, चैरिटी करते हैं, और पेशेंट्स को ठीक करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्ला जी। मे गॉड ब्लेस योर सेंटर एंड पूरा whatever you do, God will give you success. थैंक यू जॉनी जी। मैं सबको बताऊं कि जॉनी जी का हम एक पहलू हर कोई जानता है कि वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, स्पेशली हमारे फील्ड में या हमारे पेशेंट लोगों में, कि ही इज ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड ही इज एक्चुअली एन इवेंजलिस्ट एंड it was something which came as a very pleasant surprise to me. So मैं चाहता हूं कि वो उस बारे में कुछ अपने experiences बताएं हमें, and I'll request him कि वो इस जगह को भी bless करें। नहीं, जरूर जरूर। हर अच्छे कामों में परमेश्वर का हाथ होता है, उनकी रोशनी होती है। और ये क्या है कि हम लोग, मैं 2002 में मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था, तो उसमें उसके चक्कर में मैं बहुत ही परमेश्वर के करीब चला गया। मैं परमेश्वर के करीब चला गया, मैं ग्रंथ पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया। तो उसमें मुझे बहुत सारी बातें से समझ आई कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, परमेश्वर के करीब जाना है। परमेश्वर हम सबका सृष्टि करता एक ही है, तो उनके करीब जाना है। जब उनके करीब गया तो मुझे मेरे अंदर में पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ गिफ्ट है। जैसे आपके हाथ में गिफ्ट है, हम हर बंदा, हर इंसान के अंदर कोई गिफ्ट होता है। जो भी वो कार्य करता है, वेल्डर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, कोई भी हो, उनके अंदर गिफ्ट जरूर होता है। हर इंसान के अंदर गिफ्ट होता है। मैकेनिक हो, तो गिफ्ट होता है। तो हमारे अंदर भी एक टैलेंट तो है, उसके साथ साथ ये गिफ्ट भी होगा। तो मुझे नहीं पता चला कि मैं किसी को हाथ लगा देता हूँ तो उसके अंदर की बीमारी चली जाती थी। और ऐसा नहीं कि बीमारी ऐसी चली जाए कि डॉक्टर लोगों को कुछ करना नहीं पड़े, ऐसा नहीं। तो ये होता है, हम इन द नेम ऑफ जीसस प्रे करते हैं, यीशु के नाम से वो ताकत आती है। तो वो चीज मुझ में आगे, मैं 12-13 साल यही करता रहा बीच में। तो ये और आप लोगों को जो गिफ्ट है, जो आप करते हैं, वो आपको परमेश्वर ने दिया है। आप लोग जो करते हैं वो ये भी परमेश्वर की कृपा है, समझे कि नहीं। आपके अंदर शिफा है। कई बार आप किसी पेशेंट को हाथ भी लगाते हो, वो बोलता है मेरे को अच्छा हो गया मैं आपके हाथ रखने से वो अच्छा हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर ने किसको क्या दिया है, तो ये एक है गिफ्ट। लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर का काम हम करें, नहीं, आप अपना काम करते हैं। जो आपने हमारे पेशेंट के लिए जो किया, ये तारीफ काबिल है, ये ऊपर वाले की देन जी। तो मतलब ये दोनों चीजें जोड़ना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दवाइयां भी कई बार काम नहीं करेंगी, इसी तरह से सिर्फ दुआएं या स्पिरिचुअल एनर्जी भी सिर्फ वही काम नहीं करेगी। ये दोनों का कर्म होना बहुत जरूरी है, ये दोनों की युति होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तभी जो है आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आखिरी में सबसे बड़ी शक्ति तो ऊपर है। और आप कहते भी हैं कि भाई हम तो कर रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, बोलते भी हैं। और सारी शायद अल्टीमेटली जो ऊपर वाला चाहता है उसके आगे तो हम नहीं जा सकते। तो वो चीज भी हमें एक एक्सेप्ट करना पड़ती है। तो थैंक यू जॉनी जी, इट इज रियल प्लेजर टू हैव यू हियर एंड फॉर ब्लेसिंग us all. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Donny Lever, and thank you so much, Dr. Shukla. Well, ladies and gentlemen, अब हमारे साथ नीलू बेन है. She's taken care of Dadi Gulzar, who has been chief and global head of Brahma Kumari for the last 30 years. I would request her to please say a few words. ओम शांति। आज ये दवा खाना कहो या सभी की दुआएं लेते हुए जगह कहूँ, तो आज ये देख के ऐसे ही याद आ रहा था कि दादी को हर चीज ऐसी सफेद सफेद बहुत पसंद।
तो आज हमको ये देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि ये कोई दवा खाना है। ऐसे लग रहा है कि जो सब आत्माएं हैं, जो आत्माओं की दुख दर्द में आज पीड़ित है और वो यहाँ आएंगे तो उनको दुख दर्द तो खत्म हो जाएगा, किंतु साथ साथ उनको जो मन में एक शांति और एक प्रेम वो यहाँ से प्राप्त होंगी। तो आज इस शुभ दिन पर हम सभी ब्राह्मण परिवार या ब्रह्मा कुमारी पूरी संस्था की तरफ से, लाखों आत्माओं की तरफ से, जो हमारी संस्था में सभी जुड़े हुए हैं उनके तरफ से और दादी गुलजार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि जब हम सभी ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं कि तो ऐसे लग रहा है कि दादी वो क्लिनिक पे अपने आप ही पहुंची हुई है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर और सुनीता बहन हमारी और जो सब चक्कर लगा रहे थे, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि दादी उनके साथ साथ ही चक्कर लगा रही। तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर दादी की सेवा इतनी किए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि दादी ऐसी समझती थी या डॉक्टर ऐसे समझते थे कि जैसे एक परिवार की हिस्सा है। जैसे कैसे ऐसे लगता था कि जैसे माँ बेटे का प्यार होता है, कि माँ जैसे बेटे को नहीं देखते थे तो इंतजार करते थे कि इस प्रकार दादी भले पेशेंट थी डॉक्टर की, किंतु उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जैसे दादी इंतजार करती। तो पूरे लॉकडाउन में कहो या जब से 2 साल से डॉक्टर ने दादी की जिम्मेवारी लिया, तब से दादी जैसे संडे आता था तो दादी इंतजार करती, हमारे से पूछती थी आज डॉक्टर नहीं आ रहे। हम कहते थे नहीं आज डॉक्टर थोड़ा बिजी है, आएंगे जरूर। तो दादी इंतजार करती थी जब डॉक्टरों को दादी देख लेती थी और डॉक्टर जैसे इलाज करते थे, दादी निश्चिंत होकर फिर सो जाती। हर पल जैसे डॉक्टर कहीं भी जाते थे तो दादी के पास आके छुट्टी लेके जाते थे और कहीं भी देश विदेश डॉक्टरों को जाना होता था तो दादी से छुट्टी लेके जाते थे। तो दादी उनको इतनी प्यार से और शक्ति भरी दृष्टि देती थी और सभी की दुआएं देती थी। डॉक्टर हमेशा सफलता प्राप्त करके वहां से आते थे। तो आज जो भी यहाँ आएंगे, हमको यही विश्वास है कि जरूर उनकी तन की बीमारी ठीक होंगी और मन की बीमारी ठीक होंगी। और डॉक्टर तो शुरू से ही इतने निर्माण रहे और इतनी हम्बल रहते हैं, लगता नहीं है कि जैसे आते थे डॉक्टर कोई डॉक्टर जैसे ऑफिशियल उससे आते थे, डॉक्टर ऐसे आते थे जैसे हम जैसे बहुत एक फैमिली एक परिवार की तरह आके दादी को ट्रीट करते थे। देखो एक तो मैं आपको बताऊं, जो दादी को सभी देखने के लिए और सबकी आंखें बहुत ब्राह्मण परिवार की तरफ से रहते थे, क्योंकि आपको सभी को डॉक्टर बताएंगे दादी से क्या अनुभव हुआ है उनको, किंतु मैं आपको यही बताती हूँ दादी को सभी तरस जाते थे, किंतु दादी डॉक्टरों को देख के इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी और उनकी चेहरा भी आप देखेंगे हमेशा मुस्कुराता हुआ होता था और दादी भी उनको देख के बहुत मुस्कुराती थी। दादी हमेशा कहती थी कि ये खुश रहता है और सभी को खुश करते हैं। तो कोई भी किसी को ऐसे नहीं लगता था जैसे डॉक्टर के सामने जाओ तो पेशेंट जैसे दुख दर्द होता था कि जैसे डॉक्टर के सामने जाते थे अपना दुख भूल जाते थे, उनकी चेहरा देख के उनकी चेहरा इतनी मुस्कुराते हुआ होता था और उनके साथ सुनीता बहन भी बहुत सहयोगी। तो मैं आज एक आपको बात सुनाऊं कि दादी जब 1 महीना पहले 2-4 महीना पहले दादी जब एडमिट थी हॉस्पिटल में, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो
कहा कि थोड़े समय के लिए दादी अभी है और उसके बाद दादी मतलब अंतिम सांस लेंगी, तो आप जिसको बताना सबको बता दो। तो हमने सबको बताया, सभी हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर सारे, नर्सेस सारे सब पहुंच गए और दादी सबको दृष्टि दे रही थी। तो दादी के चेहरे से ऐसे लग रहा था कि दादी जैसे किसी इंतजार कर रही, कि स्वयं परम पिता परमात्मा का रथ जिनके शरीर में प्रवेशता होती है, वो किसकी इंतजार कर रहे। तो ऐसे लग रहा था दादी जैसे देख रही है, तो हम दादी के तरफ से देख रहे थे। तो जैसे डॉक्टर शुक्ला एंटर किया, दादी की दृष्टि उनके तरफ गई। तो दादी दादी जैसे वो नजदीक में आए, उनको दादी ने दृष्टि दिया। ऐसे लग रहा था दादी जैसे पूरा शक्ति उनके अंदर भर दिया और सफलता की जैसे वरदान दे रही कि आप जो भी कार्य करेंगे आपके साथ सफलता है ही। जैसे परमात्मा का ये एक वरदान उनको दादी दे रही थी। दादी देते देते, दृष्टि देते देते ऐसे लग रहा था दादी उनसे छुट्टी लिया और आंखें बंद किया। तो ऐसे ही डॉक्टर हमारे इतनी सौभाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है, इसका मैं क्या वर्णन करूं। हमारी सभी ब्राह्मण परिवार की या ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से और दादी के तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज मैं आपको बताऊं, जब मैं अमृत वेले में 4 बजे मैं उठती हूँ, हमारी ये नियम होता है। उठ के जब मैं दादी के पास गई, दादी का जैसे फोटो के सामने गई, तो दादी को हमने सबसे पहले दादी को यही बताया कि दादी आपकी सबसे प्रिय और लाडले डॉक्टर की आज क्लीनिंग उद्घाटन है। तो ऐसे लग रहा था कि दादी जैसे सचमुच चेतन में बैठी हो और जैसे मुस्कुराते हुए दादी ने ऐसे ही जैसे वरदान हाथ सुनीता डॉक्टर शुक्ला और सुनीता बहन की सिर पे हाथ रखा और बोला सफलता भव, और जो यहाँ आएंगे वो हमेशा के लिए निरोगी काया बन जाएंगे। ऐसे करके दादी ने जैसे उनके सिर पे हाथ रखे वरदान दे रही थी। मुझे इसका अनुभव हुआ और मैं समझती हूँ दादी तो वहां ही बैठी होंगी और सभी को जैसे दुआएं और शुभभावना शुभकामनाएं देती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति नीलूबेन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगी बीके शिवानी बेन से कि वो अब कुछ कहें। ओम शांति। जैसे नीलू बहन हम सबके साथ हर दृश्य को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो इतने प्यार, इतनी दुआएं, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, तो अनुभव तो वो नीलू बहन, गुलजार दादी और डॉक्टर शुक्ला का था। लेकिन सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि हम सब भी उस सीन का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा था कि वो अंतिम दृष्टि सबको मिल रही है और सबके अंदर वो शक्ति और वरदान सफलता का भरता जा रहा है। आज जैसे दीदी सुना रहे थे कि दादी के लिए भी, दादी को तो इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं और इतने लोग मिलने के लिए इंतजार करते थे, लेकिन दादी उनका इंतजार करती थी। दादी इसलिए नहीं इंतजार करती क्योंकि वो डॉक्टर हैं। हाँ, दादी डॉक्टर हैं इसलिए इंतजार नहीं करती, क्योंकि दादी तो अपने शरीर के बारे में कभी सोचती नहीं थी। दादी के शरीर का ध्यान तो डॉक्टर रखते थे, नीलू दीदी और बाकी भाई बहनें रखते थे। दादी का अपने शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं था। तो दादी डॉक्टर शुक्ला का इसलिए नहीं इंतजार कर रही थी क्योंकि वो डॉक्टर है, आके मेरे शरीर को देखेगा, दवाई देगा। नहीं, जरूर डॉक्टर शुक्ला की वाइब्रेशन में कोई ऐसी चीज है, और वो चीज दादी की वाइब्रेशन को भी जैसे इंतजार रहता था कि वो शुद्ध आत्मा उनसे मिलने आने वाली है। डॉक्टर मिलने आने वाले हैं नहीं, वो एक प्योर डिवाइन आत्मा उनसे मिलने आने वाली है। नहीं तो अगर सोचा जाए कि चलो रोज रात को इंतजार करते या संडे संडे इंतजार करते, चलो फिर भी मानो। लेकिन जब आत्मा का अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण है,
अंतिम क्षण में आत्मा हमेशा के लिए विदाई लेकर जा रहे हैं, और एक ऐसे परिवार से विदाई लेकर जा रहे हैं जिसमें 4-6 लोग नहीं हैं, लाखों लाखों लोग हैं इस परिवार के अंदर। दादी 4-6 लोगों की दादी नहीं थी, दादी तो लाखों लोगों की दादी है। और वो दादी जब अपने अंतिम क्षण में भी उन लाखों में से किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, और किसका इंतजार कर रही थी? तो डॉक्टर शुक्ला, आई कैन ओनली से that there's something very special about you. What is that special thing? I really don't know. लेकिन God knows and दादी knows. That's for sure. But there is something very special. और दादी ने, जैसे दीदी ने कहा, definitely आपको कुछ बहुत भरा है एंड में जाने से पहले। क्योंकि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, इवन नॉर्मल आत्मा, ये तो दादी है जिनकी तो स्थिति ही एकदम प्योर डिवाइन एंजलिक थी, लेकिन नॉर्मल भी दुनिया में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, उनकी पावर्स एक अलग लेवल पर चली जाती हैं। वो जाने से पहले अपने परिवार को जो कहती हैं, जो देती हैं, वो उस परिवार के लिए हमेशा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि द सोल इज जस्ट लीविंग, इट्स लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और दादी जो कि एक फरिश्ता स्टेज को रीच कर चुकी थी, आपने तो दादी को 2-3 साल देखा है कि शरीर की तो क्या स्थिति थी, वो आपसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन उस शरीर में भी दादी ने वो 2-3 साल इतने लाइट होकर हम सबको शक्ति देते हुए वो 3 साल गुजारे हैं। लेकिन उस शरीर को छोड़ते हुए भी अंतिम क्षण में आपको दृष्टि दी है। ये नॉर्मल बात या छोटी बात नहीं कहेंगे, दिस इज गोइंग टू प्ले सम वेरी सिग्निफिकेंट रोल, दैट इज सर्टन। अभी तो वो आपको भी नहीं पता है कि क्या है, और हम सबको भी नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हम सबको ये सर्टन है कि है कुछ बहुत बड़ी चीज, क्योंकि एक फरिश्ता आपको जाते जाते शक्ति देकर गया है, भगवान की याद की दुआएं देकर गया है। वो जाते जाते सिर्फ परमात्मा की याद में होती है, उनको यहाँ की दुनिया का कोई अट्रैक्शन और अटैचमेंट नहीं होता है। वो संपूर्ण परमात्मा की याद में आपको वो शक्ति देकर गई है। तो आप सिर्फ अब साक्षी होकर देखना हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू अनफोल्ड, और जैसे जैसे लाइफ अनफोल्ड होगी आपको वो ब्लेसिंग और वो शक्ति मैनिफेस्ट होते दिखेगी। ऐसी चीजें होंगी जो आपने भी नहीं सोचा था कि होने वाले हैं, ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि आपकी भी कैपेसिटी के बाहर की चीज है। ये सब आपके जीवन में अनफोल्ड होने ही वाला है, दैट इज सर्टेन। जैसे भाई साहब ने सुनाया आपके बारे में कि आप जिसको हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाता है, अर्थात आप जिसका इलाज करते हैं आपके पास शफा है, भाई साहब के पास शफा है। ये शफा क्या होती है, ये हम सबको सीखना है, क्योंकि हम सबको लगता है कि गिफ्ट तो क्या कुछ ही लोगों को मिलता है, हम सबके पास भी वो गिफ्ट होना चाहिए ना। कुछ ही लोगों को क्यों गिफ्ट मिला है, ये शफा कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है, ये शफा कुछ ही लोगों को नहीं मिलती है। परमात्मा कभी भी कुछ ही बच्चों को कुछ दे ऐसा नहीं हो सकता। क्या पेरेंट कभी पार्शियल होता है कि अपने एक बच्चे को कुछ दे और दूसरे बच्चे को न दे? कभी पेरेंट ऐसे कर सकता है क्या? माता पिता तो अपने हर बच्चे को सेम देते हैं, तो भगवान भी अपने हर बच्चे को सेम देता है। भगवान कभी एक को कम दूसरे को ज्यादा दे ही नहीं सकता है। लेकिन हाथ में शफा अर्थात क्या, एक होता है इलाज, ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट हम किस बेसिस पे करते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल, वो तो हर एक का अलग अलग होता है। लेकिन दूसरा होता है हमारी वाइब्रेशन, हम यहाँ पर कितने साफ हैं, यहाँ की प्योरिटी कितनी है। एक है इंटेलिजेंस और एक है सोल की प्योरिटी। तो वो जितनी प्योरिटी यहाँ होगी, जितनी मैल नहीं होगी, हर एक के लिए साफ शुद्ध सोचेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निस्वार्थ भाव से करेंगे। निस्वार्थ, सेल्फलेस, डूइंग इट ओनली फॉर द इंटेंशन ऑफ डूइंग। कोई इच्छा नहीं कि इससे भी मुझे भी कुछ मिलने वाला है। तो ह्यूमिलिटी, जैसे दीदी ने बताया कि डॉक्टर शुक्ला, सुनीता बहन, इनके अंदर ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी मतलब ईगो का ऑपोजिट, ईगोलेस। तो ईगो हमारे के वाइब्रेशन को बहुत नीचे लेकर आता है, और ह्यूमिलिटी हमारी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर आती है। फिर सिंप्लिसिटी, सादगी,
कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं है, बहुत सिंपल सहज हर एक के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ चैट पर भी देखा, आपके किसी पेशेंट ने लिखा, डॉक्टर शुक्ला इज एन एंजल फॉर मी। तो आपको एंजल सिर्फ दादी थोड़ी बोल रही थी, आपको एंजल सिर्फ दीदी थोड़ी बोल रही हैं, आपके सारे पेशेंट्स आपको एंजल बोल रहे हैं। एंजल क्यों बोल रहे हैं? आप तो डॉक्टर हैं, तो फिर एंजल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर जो आप ट्रीट करते हैं वो आप हैं, एंड एंजल जो आप पर्सन है, जो आप व्यक्ति है, वो एंजल है। तो वो जब एंजलिक नेचर अर्थात प्योरिटी, कंपैशन, शुद्धता, ह्यूमिलिटी, ये संस्कारों को हम जितना जितना अपने जीवन में इमर्ज करते हैं, उतना हमारी जो वाइब्रेशन और ऑरा होती है ना, उसमें प्योरिटी आती है। उसमें जब प्योरिटी आती है तो आप जो भी करेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्टर है, कोई भी है, वो जो कर रहे हैं उसके अंदर उनकी वाइब्रेशन आती है, और जब वो वाइब्रेशन में प्योरिटी आती है तो जो वो करते हैं वो एक अलग लेवल पर चला जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं ये तो अलग है, इनको शफा है, इनको भगवान की गिफ्ट है। भगवान ने सबको सेम दिया है, लेकिन किसी ने अहंकारवश, अपनी कमजोरी और नेगेटिविटी की वश अपनी प्योरिटी को दबा के रखा है, और किसी ने अपनी प्योरिटी को इमर्ज किया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे सक्सेस मिलती है, तो चाहे वो भाई साहब हैं, चाहे वो डॉक्टर शुक्ला हैं, सक्सेस कितनी भरपूर मिली है, कितनी सक्सेस मिली है। और जब सक्सेस मिली, अप्रिसिएशन मिली, तो कितनों ने आपको कितना कितना महिमा की होगी। लेकिन जितनी अप्रिसिएशन मिली उतना ह्यूमिलिटी बढ़ती गई। नहीं तो क्या होता है, जितनी अप्रिसिएशन मिलती है कभी कभी ईगो बढ़ जाता है, ओ मैंने ये किया, मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसका इलाज किया। आप दोनों ने कहा मैंने नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे करते हैं, बाकी कराने वाला वो है। ये ह्यूमिलिटी है, ये ह्यूमिलिटी है। मैंपन नहीं आता, क्योंकि लोग तो आपको आकर कहते होंगे कि आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आपने हमारे बच्चे को बचा दिया, आपने हमारे इनको बचा दिया, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। और जब हम रोज ऐसा सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आने लगती है कि मैंने ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो मैंपन, वो ईगो, द आई, वो हमारी प्योरिटी को घटाना शुरू करता है और हमारे ऊपर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो हमेशा ये याद रखे कि हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, सिर्फ कराने वाला वो। तो दादी जी भी ऐसे सिखाती थी कि मैंने क्या किया, हम सब बोलते थे दादी आपने ये किया, मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ बैठ गई थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। इसलिए दादी से हम सबको वो एंजलिक प्योरिटी महसूस होती थी। इसी तरह आप दोनों ने भी यही कहा, और यही हम सबको आज पक्का करना है, अपने आप से सीखना है। हम जीवन में छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें भी मैंपन ले आते हैं। हाँ मैंने ये किया, ये मेरा आइडिया था, मैंने बोला ना तो वो ठीक हो गया, मैंने कहा वो बदल गया। वो मैं कितनी बार हम कहते रहते हैं, और वो मैं आत्मा की प्योरिटी को घटाता है। तो दादी कहती थी मैं बकरी की तरह कहते रहते हैं, बकरी की बलि चढ़ा दो, इसीलिए दुनिया में बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो वो एक्चुअली बकरे की बलि नहीं चढ़ानी होती है, वो अपने अंदर के मैं करने की जो आदत है ना, उसकी बलि चढ़ानी होती है, फिनिशिंग द ईगो विद इन। क्योंकि वो ईगो ही हमारी ये जो शफा है, जो प्योरिटी है, इसको घटा देता है। तो आप दोनों विशेष आत्माओं की ये स्पेशलिटी है कि आपको बहुत महिमा मिली है, बहुत सक्सेस मिली है, और आने वाले समय में तो बहुत बहुत मिलेगी। लेकिन जितनी आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी, उससे ज्यादा आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी, उससे ज्यादा ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी, और इसीलिए फिर सक्सेस और मेनी फोल्ड्स बढ़ती जाएगी। क्योंकि ह्यूमिलिटी का सक्सेस के साथ कनेक्शन है, सिर्फ क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस का नहीं होता है। जैसे भाई साहब ने बताया, एक ही पेशेंट अलग अलग डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना, फिर एक जगह आकर वो कैसे ठीक हो गए। ह्यूमिलिटी का प्रोपोर्शन चेक करना है। तो आज हम सब भी, जब हम, अगर आज तो हम ऑनलाइन है ना, अगर हम फिजिकली पहुंचे होते क्लिनिक में, तो हम कुछ लेकर आए होते ना, कोई फ्लावर लाता, कोई गिफ्ट लाता, हम सब कुछ लेकर आए होते। अब हम फिजिकली नहीं पहुंचे हैं, तो हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं आज? आज हम सब अपने अंदर के मैंपन का गिफ्ट देते हैं, स्वाहा करते हैं। ये सारा दिन जो हम मैं बोलकर अपने रिश्तों में टक्कर ले आते हैं,
अपने मन और अपने शरीर के अंदर बीमारियां लाते हैं। आई एम श्योर अगर हम कभी भी डॉक्टर शुक्ला से, डॉक्टर सुनीता से मिलेंगे ना, कल उन्होंने मुझे दिखाया, उनके क्लिनिक में एक बहुत प्यारा सा काउंसलिंग सेंटर है, जो सबसे पहले अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा ना, वो बुद्धा जी जहाँ थे, वो काउंसलिंग रूम है। तो काउंसलिंग में क्या बताएंगे, वो हमें ये बताएंगे कि हमारे को अपने मन को पहले ठीक रखना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी तो हमारे मन से हमारे शरीर तक पहुंच जाती है। इतनी छोटी छोटी हमारी एज होती है और हमें इसकी एलर्जी, उसकी एलर्जी, तो वो उसका इलाज तो करेंगे, लेकिन वो साथ में एक बहुत प्यारी सी आपको राय देंगे कि अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना, लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए। और लाइफस्टाइल में एक और चीज होती है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो भी लाइफस्टाइल है। तो दादी जी की पूरी लाइफस्टाइल एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल थी, सुबह से लेकर रात तक। और फिर परमात्मा के साथ वो निमित्त बनी एक ऐसी संस्था क्रिएट करने की, जिसमें आज सारे विश्व में 130 देशों में लाखों भाई बहनें उसी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का एक्सपेरिमेंट करते, वैसे ही जीवन जीते। तो वो लाइफस्टाइल हमारे मन और शरीर दोनों को बहुत बहुत क्लीन, इजी और हेल्दी रखती हैं। तो आज छोटी छोटी बातें कुछ हम देख लेते हैं, जिसको हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, जिससे हो सकता है फिर डॉक्टर शुक्ला के पास पेशेंट हो सकता है थोड़े कम हो जाए, अगर हम सब ये वाला लाइफस्टाइल लीड करना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप दोनों ऐसे हैं कि अगर आपके पेशेंट ठीक हो जाए और कम हो जाए, उसमें आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी कि वाह, आप वैसे वाले नहीं है जो कहेंगे आओ आओ मेरे पास सबको आना चाहिए। आप कहेंगे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, जितना मेरे पास नहीं आओगे उतना हमें खुशी होगी। तो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहली चीज, ये जो टेंशन, एंजाइटी, फियर, ऐसी भावनाओं को हम नॉर्मल बोल देते हैं। कहीं से हम सुन लिया ये नॉर्मल है, और हमारे आसपास सब क्रिएट करते हैं, तो हम भी क्रिएट करने लग जाते हैं। इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है, ये मन की एलर्जी है सारी, जिनको हम नॉर्मल बोलकर उनके साथ ही जीते रहते हैं, ये समझकर कि ये तो जीवन का एक हिस्सा है। प्यार, लव, कंपैशन, शांति, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, कोऑपरेशन, कंपटीशन नॉर्मल नहीं होता, कोऑपरेशन नॉर्मल होता है, काइंडनेस, शेयरिंग, ये सब नॉर्मल है। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए इन सब इमोशंस को नॉर्मल बोलना शुरू करें। और ये जो नेगेटिव डिस्टर्बिंग वाली होती है, ये एक इमोशनल इलनेस होती है। और जब हमारे अंदर ये इमोशनल इलनेस बहुत लंबी रहती है ना, तभी कोई ना कोई फिजिकल इलनेस मैनिफेस्ट होती है। नहीं तो हमें कुछ भी नहीं होगा अगर हम अच्छी वाली लाइफस्टाइल लीड करेंगे। तो सबसे पहले इन इमोशंस को, तो आज हम जैसे एक चीज छोड़ते हैं कि आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे। दादी जी कभी, हम कितनी भी बड़ी गलती कर ले, मैं तो बोलती हूँ कोई पाप भी करके दादी के सामने आ जाए, तो दादी कहेंगी बहुत अच्छा है, परमात्मा का बच्चा है, ऐसा मतलब उसको दुआएं देना। शिक्षा भी बाद में बहुत अच्छी बात सिखाती थी, पहले दुआ दो, उस आत्मा को शक्ति दो, उसकी विशेषता देखो, फिर धीरे से एक लाइन में उसको शिक्षा देना। शिक्षा तो उसको ऑलरेडी पता है, लेकिन उसको पहले शक्ति चाहिए, पहले उसको ब्लेसिंग्स की पावर चाहिए। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल, अब इसको हम कैसे नॉर्मल करें, तो छोटी छोटी बातें। सबसे पहली चीज है अपना स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, हमारा स्लीप साइकिल हेल्दी होना चाहिए। अगर हम सही समय पर नहीं सोते और सही तरीके से नहीं सोते हैं, मतलब डीप स्लीप का एक्सपीरियंस नहीं करते, तो हमारे माइंड और शरीर की हीलिंग नहीं होती है। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो हम स्कूल में सुनते थे, तो कम से कम 10 बजे का समय रख लें कि 10 बजे हमें सो जाना चाहिए। अब देखो डॉक्टर शुक्ला क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हर बार जब हम डॉक्टर शुक्ला से मिलते हैं, कहते डॉक्टर साहब जल्दी सो जाया करो, आप तो यहाँ इतनी लेट आते हो, आप घर कब जाते होंगे, आप सोते कब होंगे। लेकिन उन्होंने तो अपनी जीवन ही समर्पित कर दिया ना, वो अपने लिए जी नहीं रहे हैं। वो कहते इतने सारे, उनको सबको छोड़ के मैं कैसे घर जा सकता हूँ सोने के लिए टाइम पे। तो लेकिन वो उनकी सेवा है, बाकी हम सब सो सकते हैं टाइम पे। तो सारे जो आज है हम पक्का करेंगे, ये रात को टीवी देखना, सीरियल देखना, अपने फोन के साथ घंटों घंटों ऐसे बैठे रहना, ये यहाँ की तामसिकता, यहाँ की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। और जब यहाँ टॉक्सिसिटी होती है,
तब शरीर में टॉक्सिन्स आते हैं, उसका वाइब्रेशन का इफेक्ट यहाँ पर आता है। तो 10 बजे हम सोने का टाइम फिक्स करते हैं और 8 साढ़े 8 के बाद हम अपनी वर्क कम्युनिकेशन, वर्क ईमेल्स, वर्क मैसेजेस, फिर न्यूज, कभी भी न्यूज रात को नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं रात को या सुबह सुबह, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स, सीरियल जिसमें घर टूट रहे हैं, मूवीज जिसमें चिल्लाना चीखना, ये सब रात को सोने से पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हम रात को भरते हैं वो सारी रात चलता है और हमें गहरी नींद नहीं आती है। रात को सोने से 10 मिनट पहले परमात्मा को याद करके, अपने जीवन भर की, दिन भर की सारी बातों को वहां सरेंडर करके, कुछ अच्छा पढ़कर, स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब कुछ बहुत सात्विक यहाँ शुद्ध भरकर 10 मिनट भी भरेंगे और परमात्मा को याद करके सोएंगे, बड़ी गहरी नींद आएगी और नींद जल्दी खुलेगी, सुबह सुबह जल्दी उठ सकेंगे। तो हम ब्रह्म मुहूर्त उठ जाते हैं, 4 और 5। आज दीदी ने क्या कहा, मैं 4 बजे सुबह रोज उठती हूँ। हम सब उठते हैं, लेकिन उसका सिंपल तरीका है, रात को 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर उठने का नहीं सोचना पड़ता, नींद तो अपने आप ही खुल जाएगी उसके टाइम पर, और फ्रेश उठेंगे। ऐसा नहीं अलार्म लगाया, उसको भी बंद किया, थके हुए उठे, ऐसा नहीं, नेचुरल फ्रेश उठेंगे। कौन से समय पर उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो सारे दुनिया के काम हम, आज डॉक्टर साहब ने भी मुहूर्त जरूर निकलवाया होगा, ये क्लिनिक उद्घाटन का निकलवाया था ना डॉक्टर शुक्ला, मुहूर्त इसका जरूर निकलवाया होगा, सही समय सही दिन। हम सब निकलवाते हैं ना अच्छे काम के लिए मुहूर्त। परमात्मा कहते हैं दिन का मुहूर्त सही होना चाहिए पहले, दिन का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त समय उठे तो पूरे दिन के सारे काम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम सही मुहूर्त के समय उठे थे। फिर हम सुबह उठकर मेडिटेशन करके, परमात्मा को याद करके, शक्तियों को अपने अंदर भर के, कम से कम आधा घंटा स्पिरिचुअल स्टडी कंटेंट। जब आप डॉक्टर शुक्ला के क्लिनिक पे जाएंगे, वो आपको डाइट के बारे में सिखाएंगे। तो डाइट जो हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन एक और चीज डाइट है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो इमोशनल डाइट होती है। और आजकल क्योंकि हमारे पास बहुत कंटेंट है, हमें इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है और कम से कम सुबह 15-20 मिनट हेल्दी इमोशनल डाइट लेनी है। मतलब पवित्रता, गॉड्स विजडम, वो सुबह सुबह की हमारी डाइट होनी चाहिए। और सारा दिन में फोन और टीवी से जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड। जैसे भाई साहब हमें हंसाते हैं, अब ऐसी चीजें सुने ना तो फिर भी अच्छा है, अच्छा यहाँ भी लाइट हो जाएंगे, बॉडी में भी लाइट हो जाएंगे। लेकिन कोई हमें रुला रहा है, लड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, तो वो हमारे मन और शरीर दोनों के लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो कंटेंट की डाइट का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा खाना पीना, वो भी हमारी डाइट, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो सबसे पहली चीज सात्विक डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब वेजिटेरियन डाइट। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस वाइब्रेशंस ठीक नहीं होती है ना, दर्द होता है, चिल्लाना चीखना, गुस्सा, हिंसा, फिर डेथ। हाउ कैन वाइब्रेशन ऑफ डेथ बी वाइब्रेशन ऑफ हेल्थ फॉर समबडी? प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, हेल्थ नहीं हो सकती है वो। तो इसलिए अपने शरीर और मन को ठीक करने के लिए सबसे पहले वेजिटेरियन डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आप 3 महीने अगर डाइट चेंज करेंगे, ये उसमें ही आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लाइट खाना खाएं, इजी टू डाइजेस्ट खाना। आज डॉक्टर ने बताया कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? हमारी लाइफस्टाइल, डाइट कौन सी है, हम खाना कौन सा खाते हैं। तो हम अगर प्लांट बेस्ड डाइट लें और इजी टू डाइजेस्ट लाइट खाना खाएं। आजकल हम हेल्थ के लिए खाना नहीं खाते हैं, आजकल हम हैप्पीनेस के लिए खाना खाते हैं, हम टेस्ट के लिए खाना खाते हैं। टेस्ट के लिए खाना नहीं खाना, हेल्थ के लिए खाना खाना। अपने आप आधी से ज्यादा बीमारियां चली जाएंगी, क्योंकि हम चॉइस ठीक करेंगे ना। फिर हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम बाहर का ज्यादा नहीं खाएंगे, घर का खाना खाइए। घर का खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो परमात्मा की याद और परिवार के प्यार में बना होता है। पैसे कमाने के लिए खाना नहीं बना होता, वो खाना सिर्फ तब खाना होता है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। आजकल हम घर में बैठ के खाना ऑर्डर कर देते हैं, ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो प्लांट बेस्ड डाइट और अपने किचन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जैसे प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बन रहा है।
तो हाई एनर्जी वर्ड्स किचन में प्ले होने दीजिए, भजन, परमात्मा की याद के गीत, मंत्र रसोई में बजने दीजिए। पीने का पानी, सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ हाई वाइब्रेशन से एनर्जाइज्ड हो जाएगा। और जो खाना बना रहे हैं, बड़े ध्यान से खाना बनाना है, ऐसे नहीं ईयर पीस लगा के किसी से फोन पे बातें करते करते खाना बना रहे हैं या मूवी के गाने सुनते सुनते खाना बना रहे हैं। वो सारे शब्द चले जाएंगे खाने के अंदर और सबके मन की स्थिति पर असर हो जाएगा। परमात्मा की बातें याद करते करते खाना बनाएं, फिर अपने परिवार को प्रसाद खिलाएं। और एक छोटी सी आदत, खाना खाते समय कोई टीवी नहीं और फोन नहीं, टीवी नहीं और फोन नहीं, 10 मिनट खाना खाना है, प्रसाद है। ये एसिडिटी और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने टीवी चल रहा है, हाथ में फोन चल रहा है, या कभी गाड़ी चलाते चलाते खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मालूम ही नहीं है क्या खा रहे हैं। सो दिस इज डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस, माइंडफुल ईटिंग, कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं खाने के टाइम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बिजनेस कॉन्वर्सेशन नहीं। आजकल बिजनेस मीटिंग करते करते खाना खाते हैं, ये सब तो खाना खाना टॉक्सिक हो जाएगा। परमात्मा को याद करके साइलेंस में बैठकर सात्विक खाना धीरे धीरे खाएंगे तो डॉक्टर शुक्ला के क्लिनिक पे जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये एलर्जी, ये सब हो ही नहीं सकता है। लेकिन मिलने जाएंगे हम उनसे और वो तो बहुत खुश हो जाएंगे आपको ठीक ठाक देखकर, मिलकर, है ना डॉक्टर शुक्ला? ठीक हो जाएंगे ना सारे छोटी छोटी बातें करके? एकदम ठीक। तो खाना खाने के टाइम कभी टीवी, फोन, छोटे छोटे बच्चे आजकल टीवी के साथ खाना खाते हैं, क्या व्यक्तित्व बनेगा? ऐसी वायलेंट कार्टून फिल्म देखते हुए खाना खाएंगे, मन पर और शरीर पर असर पड़ता है। दादी जी हमेशा सिखाती थी, पानी भी पियो ना तो भगवान को याद करके पानी पीना। I was to always listen to her. I said ये नहीं बोलती हैं कि खाना खाते हुए भगवान को याद करना, क्योंकि वो एक्चुअली हम सब लोग ऑलरेडी रोज करते ही थे, लेकिन हम पानी ऐसे पी लेते थे। तो दादी हर क्लास में बोलती थी, कितनी बार पानी पीते हैं दिन में? 8 बार पानी पीते हैं। 8 बार भगवान को याद करके पानी पीना, बिकॉज वाटर कैरीज वाइब्रेशन। पानी में, अब बॉम्बे शहर में आप, बॉम्बे की स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर आपके पानी के अंदर है। और इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं, कौन से शहर का पानी पीते हो, कौन से घर का नमक खाते हो, वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं। इसलिए पानी पीने से 5 सेकंड पहले रुकें, परमात्मा को याद करके अच्छी एनर्जी उसमें डाल के उस पानी को अमृत बना दें, तो खाना प्रसाद बन जाएगा, पानी अमृत बन जाएगी, मन हमेशा खुश रहेगा और शरीर हमेशा निरोगी रहेगा, हमेशा निरोगी रहेगा। और फिर हमारी वाइब्रेशन में इतनी प्योरिटी आ जाएगी कि जैसे शफा इन सबके पास है, वैसे शफा हम सबको मिल जाएगी। परमात्मा की दुआएं हम सबके साथ हैं, बस हमें अपने संस्कारों को उतना सात्विक और प्योर बनाकर परमात्मा हमें यूज कर सके, उसके लिए हमें एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट बनकर रहेंगे, तो हम सब फरिश्ते बन जाएंगे। और फिर फरिश्ते बन गए तो सृष्टि कलयुग से बदलकर सतयुग बन जाएगी। यही दादी जी के जीवन का लक्ष्य था कि ये सृष्टि सतयुग बननी ही है, और यही कार्य हम सब ने मिलकर पूरा करना है। तो डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर सुनीता, आप हमेशा याद रखना कि आपको दादी की और परमात्मा की दुआएं सिर्फ तब नहीं मिली हैं कि जब आप उनसे मिलने जाते थे, ये आपके जीवन भर के स्टॉक में अब जमा हो गई है, फॉर एवर, फॉर एवर। और ये हमेशा आपके साथ एक गाइडिंग लाइट बनकर आपको हमेशा मन का सुकून, शरीर का स्वास्थ्य, और जो आप सेवा कर रहे हैं उसमें हमेशा सफलता, ये आपने अपने भाग्य में लिख लिया है, ये आपकी डेस्टिनी में आ गया है। बहुत बहुत मुबारक और कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। डीके शिवानी बेन। अब मैं दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगी नीलू बेन को स्क्रीन पर। ओम शांति। आप सभी ने शिवानी बहन का आपने सुना, कितना अच्छा दादी की और डॉक्टर शुक्ला के बारे में सुनाया। किंतु आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे हमारी बैकबोन बाबा शिव बाबा है और दादी है, इस तरह से डॉक्टर शुक्ला की बैकबोन डॉक्टर सुनीता है।
क्योंकि सुनीता बेन यदि सहयोग नहीं देंगी तो आज डॉक्टर शुक्ला इतना आगे नहीं आ सकता। किंतु सुनीता बेन का साथ और हम ब्राह्मण परिवार या दादी का प्यार उनके साथ साथ है। हम देखते थे डॉक्टर यदि रात को 11 बजे आते थे दादी को देखने के लिए तो सुनीता बेन उनकी साथ देती थी। मेरी बात होती थी तो सुनीता बेन मेरे को कहती थी, दीदी आप निश्चिंत रहो, मैं डॉक्टर को लेके आऊँ, मैं डॉक्टरों के साथ आऊँ। तो दादी को जब देखने आते थे तो सुनीता बेन जरूर साथ आती थी और वो भी दादी से बहुत लाभ ली है। और दादी उनको देख के तो कई बार ऐसा होता था कि दादी जैसे आंखें बंद कर देती थी। जैसे हम दादी को बताते थे, दादी आज डॉक्टरों के साथ सुनीता बेन आई है, कि डॉक्टर सुनीता आई है, तो तुरंत दादी आंख खोल के देख के कहती थी, आप ठीक हो, आपका सब ठीक है। तो इतने में ही इतनी दुआएं और सुनीता बेन की चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, ऐसे लगता था कि जैसे सब कुछ उनको प्राप्त हो गया, सब कुछ उनको मिल गया। तो सुनीता बेन का नाम जैसा है ऐसी संतुष्ट भी है और सबको संतुष्ट कराती भी है। और जैसे हमारी दादियाँ और शिव बाबा की तरफ से हमारे मन को साफ कर देते हैं, जो बाबा की बातें, दादी की बातें हम सुन के अपनी बुद्धि को क्लियर करते हैं। इस तरह से सुनीता बेन की यही सब्जेक्ट है, अपनी ये शरीर रूपी की जो स्किन एलर्जी, जिसको कहते हैं स्किन को साफ करने का, स्किन को ठीक करने का, वो सुनीता बेन की बहुत सब्जेक्ट है। मैं समझती हूँ साथ में डॉक्टर शुक्ला के साथ सुनीता बेन भी ऐसे ही साथ देती रहेंगी और हमारे शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा की हमेशा उनके साथ दुआएं साथ रहेंगी। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रताप बैठे हैं। डॉक्टर जानते हैं उनको अच्छी तरह से और अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है और बॉम्बे में अंधेरी हॉस्पिटल है, तो उनके आप डायरेक्टर है और वो पूरे जैसे ट्रस्टी भी है, वो संभालते हैं। और अभी ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लगभग बचपन से ही लेके बाबा के ज्ञान में है। वो जब उनको पता चला कि डॉक्टर के आज क्लिनिक का उद्घाटन है, तो वो आए थे मिलने के लिए, तो देख के बहुत खुश हो गए। तो उनकी आज उनसे भी हम, आप डॉक्टर भी दुआएं लेंगे या थोड़ी आस्थे वचन बताएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, मेरे लिए तो प्लेजेंट सरप्राइज थी। संडे को मैं वैसे ही मिलने आता हूँ, नीचे शांतिवन में आता हूँ, तो आपके इस शुभ अवसर पर पहुंचा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों को, डॉक्टर आकाश को, डॉक्टर सुनीता को बहुत बहुत बधाई। नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो नए वेंचर के लिए आपका, मैं यूं कहूँ कि सफलता आपके हर कदम पर हो। और देखिए, हमारा तो व्यवसाय ही है लोगों को तंदुरुस्ती देने का, और आपके व्यवसाय में तो लोगों को गाइड करना है, लोगों को यही बताना है कि ठीक से कैसे चले। आज तो फिर आपने साथ में अपने लाफ्टर भी छोड़ दी, तो लाफ्टर तो साथ में है ही है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो डॉक्टर आकाश की तो पर्सनालिटी ऐसे है, हम लोग मिलते थे तो हम हमेशा यही सोचते थे कि देखिए कितने खुश मिजाज हैं, कितनी खुशी है। और डॉक्टर की पर्सनैलिटी ही जो है पेशेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट को लगता है कि पेशेंट की बात डॉक्टर सुन रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आधी बीमारी तो उसकी चली जाती। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो, जैसे शिवानी बहन ने कहा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो स्थिति है, स्थिति से ही आधा ही तो हम समझ जाएंगे। मुझे कुछ डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर थे ऑप्थेल्मोलॉजी के, वो कहते थे कि जैसे पेशेंट क्लिनिक में एंटर करता है, मैं उसकी आधी बीमारी समझ जाता हूँ। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी बायस के, बिना किसी दुविधा के मन में, हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्लीन होता है, तो हम पेशेंट की वाइब्रेशंस को भी कैच कर पाते हैं। और पेशेंट को तो क्या चाहिए, उसको पेशेंस चाहिए,
उसको सोलेस चाहिए, उसको एक किस्म से ये चाहिए कि मैंने जो भी चुना है, जो डॉक्टर चूज किया वो राइट डॉक्टर चूज किया। जब उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो अपने आप सरेंडर कर देता है पेशेंट तो डॉक्टर के सामने। तो मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर आकाश, आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में वो सब गुण हैं एंड यू कैन विन ओवर द पीपल्स हार्ट। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स को अपना भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो शिवानी बहन ने बातें सुनाई कि अगर हम अपने माइंड को वेल नरिश्ड रखते हैं और माइंड को पावरफुल बनाते हैं तो हम कभी कभी, मैंने तो देखा है, पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में आते हैं और अपना स्ट्रेस हमारे पास भी छोड़ के चले जाते हैं। तो हम उनसे अपने आप को इम्यून रख पाए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाए, उसके लिए ये मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी दिनचर्या को नियमित चलाना, क्योंकि बाबा हमेशा दिनचर्या पर, जो हमारी डेली रूटीन है, उस पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि हम कैसे अपना दिन आरंभ करते हैं और किस तरह से हम दिन में अपने आप को कंडक्ट करते हैं। जो हमारा यूं कहीं बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करने की बात है, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, तो वो रिचार्ज करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम चार्ज रहेंगे तो हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा, जो हम उसको देना चाहते हैं वो पूरी तरह से लेके जाएगा। और वैसे तो डॉक्टर्स का तो यूं कहेंगे, डॉक्टर्स आर मोर ऑफ ए टीचर। हमें पेशेंट को कि वो रहे और बैलेंस ऐसा हो। तो मैं सोचता हूँ कि जो आपका पर्टिकुलरली जो आपकी स्पेशलिटी है या सुनीता बहन की स्पेशलिटी है, उसमें तो पेशेंट को मास्टर बना देते हैं कि ये आपको करना है, ये नहीं करना। अगर आपको एलर्जी से बचना है तो क्या ध्यान रखना है, और अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना है तो क्या ध्यान रखना है। क्योंकि कहते हैं फूड जो है वो ना केवल बॉडी को नरिश करता है लेकिन सोल को भी नरिश करता है, अगर जिस क्वाइट या जिस पीसफुल वे से हम लेते हैं। तो पेशेंट को रीएश्योरेंस, पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस जो डॉक्टर से मिलता है, वो तभी मिलता है जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उसको अपने आप को लुक आफ्टर करना सिखाते हैं। तो आज के दिन मैं तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला और आपको शुभकामनाएं देने का ये अवसर मिला। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत यूं कहें सफलता आपके हर कदम पर, और जो भी आपके पास आए वो स्वस्थ होकर जाए, ऐसी मेरी शुभकामना। ओम शांति। डॉक्टर सुनीता, आप एंजल हैं साथ में, है ना? दादी आपको एंजल ही कहती थी ना? हाँ, क्योंकि आप सिर्फ इलाज नहीं करते, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो डेली। इसीलिए कितनी भी होंगी एलर्जीज, मुझे पता है कि आप पहले सबकी काउंसलिंग करेंगे, फिर उनको लाइफस्टाइल बताएंगे, क्योंकि हम सबको पता है हम कितनी भी दवाइयां ले लें, कितनी वो जड़ से नहीं जाती ना वो वाली चीज। तो आपने अपने अंदर वो वाली विशेषता भी ले ली है कि आपकी मेडिकल नॉलेज, आपकी डॉक्टरी की स्टडी, लेकिन साथ में परमात्मा की दी हुई स्पिरिचुअल स्टडी। सो आप तो डॉक्टर है ही नहीं, आप हीलर हैं। तो डॉक्टर शरीर का इलाज करते हैं और हीलर पहले मन का इलाज कर देते हैं। तो दादी जी हमेशा कहती थी डॉक्टर्स को कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप डबल डॉक्टर हो। आप डबल डॉक्टर हो कि पहले आप मन को ठीक करते हो, फिर शरीर को ठीक करते हो। तो आपने वो डबल डॉक्टर बन के दिखाया है। और जब आप मेडिटेशन क्योंकि खुद प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को खुद अपने अंदर इतना इनग्रेन किया हुआ है कि आपसे मिलते ही वो वाइब्रेशन सबको मिलने हैं। और जैसे दीदी ने कहा, आपने कितना प्योर कलर चूज किया है पूरे क्लिनिक के लिए, इट हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। और जब आप माउंट आबू आए थे 14 मार्च को दादी जी के समय पर, और आपने मिलकर यही कहा था कि मुझे ये थॉट आया है कि मुझे पूरे क्लिनिक को बस वाइट 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 करना है सारा। सो वो वाइट हैज अ वाइब्रेशन, इट्स दैट वाइब्रेशन व्हिच हैज ऑल कलर्स इन इट, बट इट डजंट अब्सॉर्ब एनीथिंग, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स। तो सब जब आएंगे अपने दर्द, अपने दुख, अपनी तनाव के साथ आएंगे, लेकिन हीलिंग सेंटर उसके पेन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन हीलिंग सेंटर प्योरिटी उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो सब अपनी एनर्जीज को वहां पे फिनिश करते हुए फील करेंगे। और क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करते हैं ना, आपकी हर वाइब्रेशन वर्ड और बिहेवियर से
पहले तो मन को सुकून मिल जाएगा। और जैसे डॉक्टर प्रताप भाई ने बताया, एक बार मन को सुकून मिल गया तो शरीर तो दवाई खाने से पहले ठीक होना फील कर जाता है। या कई बार तो पेशेंट बोलते हैं मुझे नहीं लगता मुझे दवा की जरूरत है, मैं ठीक हो चुका हूँ अभी बिल्कुल। कैसे ठीक हो गए? वाइब्रेशन ऑफ हीलर, वाइब्रेशन ऑफ हीलर। जैसे दीदी ने कहा कि डॉक्टर शुक्ला आ सकते हैं रात को पेशेंट मिलने, वो तभी है जब पीछे से छुट्टी मिलने वाली है उनको। अगर पीछे से आप बोलते जाओ कैसे चले गए, कहाँ चले गए, ये दोनों प्यारे से बच्चों को कौन संभालने वाला है, मैं ही अकेला सब कुछ करने वाली हूँ, नहीं। दैट सपोर्ट, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं एंड वो आपके ऑरा को और बड़ी करती रहती हैं। हमारी दादी जी हमेशा कहती हैं कि जो सेवा कर रहा है आगे, उसको जो दुआएं मिलती हैं वो पहले उनको मिलती हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से वो सेवा कर रहे हैं। तो जो सामने दिखता है सबको, उसको वो दुआएं पहले नहीं मिलती, पहले उनको मिलती हैं जो पीछे रहकर उनको आगे रहने की क्या करें, सपोर्ट, गाइडेंस और वो देते हैं। तो सारी की सारी दुआएं पहले परिवार में पहुंचती हैं, परिवार में पहुंचती हैं। बच्चों और आपकी सपोर्ट के बिना ये सब हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपका ऑरा तो और वाइट 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 एकदम एंजेलिक हो गया। और अब आपने अपना क्लिनिक वाइट बना लिया तो फिर अब लगता नहीं मुझे कि ज्यादा आपकी दवाई की जरूरत पड़ेगी। आपकी क्लिनिक और आपसे मिलकर ही सबने ठीक हो जाना है। तो इसलिए वो हीलिंग सेंटर सिर्फ एंटी एलर्जिक नहीं होगा, हम उसको हैप्पी सेंटर बोलेंगे। ये हैप्पीनेस वाला सेंटर है कि दुख में आओ, दर्द में आओ और खुश होकर। इसीलिए तो बटरफ्लाई बनाया है। आप सबने लोगो देखा क्लिनिक का, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई क्या होता है? पहले वो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है ककून में। कैटरपिलर कैसा होता है ना, दिखने में बहुत सुंदर होता है और ऐसे रिगल रिगल करता रहता है, लेकिन एक क्षण आता है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। तो डॉक्टर सुनीता ने ये लोगो क्यों चूज किया है? ये लोगो तो एक नाम की तरह होता है, जो नाम हम रखते हैं ना वो जीवन में सिद्ध हो जाता है। तो डॉक्टर सुनीता ने क्लिनिक बटरफ्लाई बनाया है, मतलब हम अपनी एलर्जीज, अपने टॉक्सिन्स, अपने दुख के साथ कैटरपिलर की तरह अंदर जाएंगे, लेकिन मेटामॉर्फोसिस होके बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए बाहर आएंगे। डॉक्टर सुनीता, आप कैटरपिलर वो लोगों का मीनिंग समझाएंगे सबको? ओम शांति। नीलू बहन, शिवानी बहन और सारे ऑडियंस, माता पिता, फ्रेंड्स, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज आप हमारे इस ऑनलाइन इनॉग्रेशन पे आए और हमें ब्लेस किया है। जब हम ये क्लिनिक की रचना कर रहे थे, कई बार हम दादी से मिलते थे, डिस्कशन होता था और अपने आप ही चीजें होती जा रही थी। ऐसा बहुत बार जब कहीं पे भी हम अटक जाते थे, लगता था अभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो जाता था, एक डिवाइन पावर कुछ तो होता था और वो मुझे उसका सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाता था। ये क्लिनिक पैसे से नहीं बना है, ये क्लिनिक बहुत लोगों की ब्लेसिंग से बना है। बहुत सारे लोग जो हमारे जीवन में आए हैं इतने सालों में, हम जहाँ पे भी अटके हैं उन्होंने आके हमारी हेल्प की है। इसमें सही में पैसा बहुत कम लगा है और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम लोगो भी बना रहे थे, ये लोगो बनाने में मुझे और सर को 2 साल लगे हैं, क्योंकि हम इस लोगों से हमारी जो विजन है, हमारा जो मिशन है ये सेंटर स्टार्ट करने का, वो सिद्ध होना चाहिए था। ये स्टार्ट करने का रीज़न भी यही है कि हम बहुत लोगों को हेल्थ केयर अफोर्डेबल रेट में गुड क्वालिटी केयर देना चाह रहे थे, जो हमें रियलाइज हुआ हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ हम नहीं दे सक रहे थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो जब ये हमने लोगो का सोचा तो ये लोगो एक्चुअली एक बटरफ्लाई है। तो हमारा ये सोचना था कि जब बीमार रहते हैं हम एक कुकून में सिकुड़ के रह जाते हैं, हम बाहर जाना बंद कर देते हैं, हमारी सोशल लाइफ अच्छी नहीं होती। जिन्हें एलर्जीज होती हैं वो रात को डिनर पे, नेवते पे नहीं जाते कि अगर मैं कुछ खा लूंगा मुझे रैशेज आएंगे, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जब मैं और सर डिस्कस करते थे, हमें लगता था ये सिंपल चीजें आदमी को कितना इफेक्ट करती है कि वो अपने लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देता है। तो हमें इसका कुछ उपचार करना चाहिए, कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो जब ये लोगो बना रहे थे तो हम एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग दिखाना चाह रहे थे। तो जो बटरफ्लाई होती है, जैसे शिवानी बहन ने कहा, पहले वो एक कुकून में रहती है और जब उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, जब उसकी तकलीफ कम हो जाती है, उसके विंग से वो उड़ना शुरू करती है। इसीलिए वो लोगो था।
पर हमारे लोगों में बीच में एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग है जिसके हाथों में विंग्स हैं। और अगर आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे वो एक्चुअली ट्रेकिया, जो हमारा विंड पाइप है वो सेंटर में है, और नीचे दो है वो लंग्स बने हैं जो लोअर विंग्स भी हैं। तो ये लंग्स, हम कई बार एलर्जिक एस्थमा होता है कि सांस नहीं आ रही, खांसी आ रही है, तो ये उस चीज से भी आपको फायदा करेगी। तो ये सब हमने सोच के आकाश जी और मैंने फिर हमने सोचा कि हाँ ये लोगो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने ये लोगो बनाया। तो हम यही चाहते कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, हम बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम उनके लाइफ में कोई चेंजेस कर सके हमारे साइंटिफिक नॉलेज से जो हमने इतने सालों में इकट्ठा की है। और नियत तो बहुत अच्छी है, नीति का बहुत फर्क पड़ता है इसमें। अगर आप आएंगे, इलाज करेंगे, तो आई होप हम आपको विंग्स दे पाए एंड यू विल बी लिबरेटेड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड आवर सेंटर शुड बी एबल टू गिव विंग्स टू योर लाइफ। सो थैंक यू, बेस्ट विशेस, एंड ओवर टू शिवानी बेन। हम सब परमात्मा की याद में 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अब हम कलेक्टिव ब्लेसिंग्स देंगे। अपने आप को देखें, स्टार आत्मा यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड। शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। परमात्मा की संतान फरिश्ता हूं मैं। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए हम सब इकट्ठे ये दुआ करेंगे। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं इस पूरे क्लिनिक के चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी सर्कल है। देखें इस सीन को। क्लिनिक के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का डिवाइन एनर्जी सर्कल है। डिविनिटी, प्योरिटी यहाँ की वाइब्रेशन है। हर एक जो यहाँ आएगा, हमेशा हर एक जो यहाँ आएगा, उसके मन को सुकून, मन के सारे बोझ हल्के हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लिनिक में नहीं, एक हाई वाइब्रेशनल हीलिंग सेंटर में प्रवेश करेंगे। हर एक के मन को सुकून, मन को शक्ति, और फिर इतनी पवित्र नीति के साथ ऐसे फरिश्ते मिलेंगे कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ऊपर ऊपर से नहीं। हर रोग जिसको लेकर हम आएंगे वो जड़ से खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। मन खुश, शक्तिशाली, शरीर निरोगी और बटरफ्लाई फरिश्ता बनकर जीवन में लाइट रहेंगे, उड़ते रहेंगे और औरों को भी उड़ाते रहेंगे। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां, सफलता हमेशा हमेशा निश्चित है कि जो इंटेंशन रखा है वो इंटेंशन हमेशा मैनिफेस्ट होगा, हर एक के साथ होगा और हर एक के लिए होगा। ओम शांति। शुक्रिया। Dr. Shukla, may I kindly request you to please say a few words as the closing address? थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ
चाहे हम उसे किसी भी नाम से बुलाएं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, वो सब एक ऐसी शक्ति है जिसने हम सबको जन्म दिया है, हम सबका पालन कर रहा है और इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और ये हमारा ब्लेसिंग है एक तरह से। वी आर ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं या इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी है जिससे हम इतने सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। उस एक चीज के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं मेरे माता पिता का, क्योंकि ये जो आप लोगों ने बोला ये सब संस्कार हैं जो माता पिता बचपन से आप में डालते हैं। और आप सभी का ये एक्सपीरियंस होगा कि बच्चे जो हैं उनको आप 10 चीजें पढ़ाएं या बोलें, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, पर वो जो देखते हैं बचपने में उसको जरूर कॉपी करते हैं। तो ये चीज बचपन से संस्कार डाले गए और वह संस्कार ही हैं जो आज मुझे यहां तक लेके आए हैं। और आशा है कि माता पिता के मार्गदर्शन और संस्कारों के पे चल के मैं आगे भी मानवता की सेवा करता रहूंगा। मुझे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं नीलूबेन का, शिवानी जी का और जॉनी लीवर जी का। दादी को तो मैं कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस मुंह से उनको थैंक यू बोलूं। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि इतने साल मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी को का मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला। और शिवाजी जी ने जो इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और अगर आप देखें तो ध्यान से सुने तो जॉनी जी और शिवानी जी ने जो कहा वो काफी सिमिलर है। अगर आप डीप फिलॉसफी में जाएंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो डिवाइन पावर हैं, हमें उनको यूटिलाइज करना है, और अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे पावर्स यूज नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की जो मैंडेट है हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं इसके अलावा मेरे बाकी परिवार, सुनीता का पूरा मायका, मेरे सारे मित्रगण, मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने न सिर्फ मुझे मेडिकल फील्ड पढ़ाया बल्कि उन्होंने मुझे पेशेंट को कैसे होलिस्टिकली ट्रीट करें वो बताया। और यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा कि हमें राइट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज के बिगिनिंग से हमें सिखाया गया कि भाई, आप लोगों ने जैसे देखा होगा मुन्ना भाई में कि एक पर्टिकुलर तरह का मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है कि भाई से आप पेशेंट को शरीर की तरह देखो, काटो पीटो ठीक करो। एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जॉनी जी यहाँ पर है, ये ड्रामेटाइज करने के लिए दिखाया जाता है ताकि वो चीज एग्जैजरेटेड हो। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन एथिक्स, बायोएथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियर, काउंसलिंग, ये सब सिखाया जाता है। ये सब करिकुलम का पार्ट है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास ऐसे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने न सिर्फ हमें वो चीज पढ़ाई बल्कि हमें रोज दिखाई। और ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये उन ग्रेट टीचर से ये चीज सीख सकें कि डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जब जाता है तो शौक से नहीं आता, कोई मजे के लिए नहीं आता, चलो आज डॉक्टर को दिखा के आते हैं। ऐसा होता है हाँ चलो आज मूवी देख के आते हैं, चलो आज घूम के आते हैं। ऐसा नहीं चलो आज डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो वो चीज जो है वो आदमी जब परेशान होता है, जब उसके कोई कुछ सूझता नहीं है, जब उसने घर में जो कुछ ट्राई कर सकता है वो ट्राई कर लिया होता है, उसके बाद परेशान होके ही जाता है। अगर डॉक्टर्स हम ये चीज को समझ सकें कि भाई जो आया है वो परेशान होके आया है। कई बार आपको लगता है क्या ये बोल रहा है, क्या ये कुछ सुनने वाली चीज है, तो हर एक के साथ है। आप खाली सुन लें तो भी कई बार चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि भाई शरीर का प्रॉब्लम नहीं मन का प्रॉब्लम है,
तो भी प्रॉब्लम तो है, इलाज तो उसका भी करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है वो समझना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें हम लोग अपनी प्रैक्टिस में लाने का हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और मतलब मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे खुद के पेरेंट्स अगर वो मुझे देख लेते हैं तो वो उनको लगता है कि हाँ चलो अच्छा अब ये है यहाँ पर, तो भले ही मैं उनको दवाई दूं नहीं दूं, पर जस्ट मेयर प्रेजेंस जो है एक रिएश्योरिंग हो जाता है, जैसे किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके चिल्ड्रन का होता है, बच्चों का होता है। तो ये एक ऊपर वाले की कृपा है कि न सिर्फ मैं बल्कि हम लोग सब मानवता की सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनके दुखों को कम कर सकते हैं, और ये हर एक के लिए पॉसिबल है। ये इसके लिए आपको डॉक्टर होना या डिग्री होना या कुछ भी होना जरूरी नहीं है। जैसे जॉनी जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई डोनेट कर दी चैरिटेबल कॉजेस के लिए, बहुत कलेजा लगता है इस टाइप के कुछ करने के लिए। जैसे शिवानी जी रोज घंटों लोगों को शिक्षा देती हैं कैसे अच्छा जीवन गुजारें। नीलूबेन आज हमको बोल रही है कि 10 बजे सोना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए 4 बजे, जबकि कितने बार मैंने देखा है दादी की सेवा में उन्होंने 5-5 दिन हफ्ता सोए ही नहीं है। तो जब वो समय आता है तो ईश्वर वो शक्ति देता है, आपको गाइड करता है कि आप वो चीज को, जो एक्स्ट्रा ह्यूमन एफर्ट्स हैं, आप डाल के उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये शक्ति हमारे अंदर है जो ईश्वर हमें देता है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। इसी फिलॉसफी पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट थैंक्स टू माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ यही है, और ये बात सच है कि मेरी वाइफ जब मैं सुबह निकलता हूँ ये बोलते हैं भाई तुम इसी तारीख को वापस आ जाना जिस तारीख को जा रहे हो। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने स्वार्थ को छोड़ के और ये चीज अलाउ करें कि भाई आप काम जो कर रहे हो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं हूं संभालने के लिए। और अब जब इनका नया वेंचर है तो होपफुली मैं वही फीलिंग्स रख के एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो एंड सिमिलरली मेरे बच्चे, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की कि पापा आप नहीं हो, आप लेट आते हो, आप ये हो। वो जगते रहते थे। इनफैक्ट मेरा बड़ा लड़का जब तक मैं घर पे आऊंगा रात को चाहे 1 बज जाए वो जगेगा, फिर मुझे कॉफी पिलाएगा, फिर वो सोता है। तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी ये बहुत बहुत मायने रखती हैं और एनर्जी आपको देती हैं। सो आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू माय पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं अपना थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझ में वो फेथ दिखाया। मैं आपकी मदद इसलिए कर पाया क्योंकि आपने मुझ में वो फेथ दिखाया। अगर आप में फेथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। सो बिग थैंक यू टू ऑल माय पेशेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय कलीग्स। और मेरे पेशेंट्स जब आप ठीक होते हैं तो वो आप जो उससे जो मुझे एनर्जी मिलती है वो इनकैलकुलेबल है। इसी तरह से बहुत बार मैं असफल भी हुआ। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने शरीर छोड़ा है क्योंकि अल्टीमेटली हम भी एक इलाज ही कर सकते हैं, फाइनल अथॉरिटी ऊपर वाले के पास है। पर सबसे अच्छा तब लगता है जब उनके परिवार वाले आके हमें बाद में थैंक यू कहते हैं, या जब उनके घर में कोई और बीमार होता है तो वो उसको भी लेके आते हैं उसी फेथ के साथ। तो उन लोगों को मैं खास करके थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि जिस डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट फेल हुआ है, शरीर छोड़ा है, उसी डॉक्टर के पास आप पूरे फेथ के साथ दोबारा जा रहे हैं। सो उस फेथ के लिए थैंक यू वेरी मच। उन पेशेंट्स को मेरा शत नमन। और आप सबके दिए मार्गदर्शन पे, दादी के दिए मार्गदर्शन पे होपफुली मैं चल के ये सेवा जारी रखूंगा। और पता नहीं, जैसा आपने कहा शिवानी जी, कौन सा बड़ा काम मेरे से होने वाला है, पर मैं चाहूंगा कि जो भी मैं करूं वो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का भला हो, बाकी सब नगण्य है, नेग्लिजिबल है। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस मोमेंट blessed and divine for us. Thank you.